हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ भजन एंड वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द किडनी के एक स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। आई थिंक होप यू गेस इट, दैट इज़ नेफ्रॉन। दिस इज़ अ क्लास 1 का टॉपिक है और यू कैन एक्सपेक्ट वन और मे बी मोर देन वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक जो आपका एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का है। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। तो ओके जी, तो हमारा मोटो तो वही रहता है कि एनसीईआरटी हमारी बेस गाइड है और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हमारा डायरेक्शन है, ताकि हम उसको अपनी टीचिंग में इंक्लूड कर लेते हैं सो दैट वी कैन नॉट डेविएट मच फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड वो हमें उतना रिक्वायर्ड पता भी होना चाहिए जितनी हमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेफ्रॉन. Reading from the NCERT, each kidney has nearly the 1 million complex tubular structures called nephron, which are the functional units. Each nephron has two parts, the glomerulus and the renal tubule. Glomerulus is the tuft of capillaries formed by efferent arteriole, a fine branch of renal artery. The blood from glomerulus is carried away by efferent arteriole. And the renal tubule begins with a double-walled cup-like structure that is called as Bowman's capsule, which encloses the glomerulus, and glomerulus along with Bowman capsule is called Malpighian body or renal corpuscle. Okay जी, तो पहले हम इतनी बात कर लेते हैं. Fine. So we started with the structure of nephron. Okay, so what is nephron? Nephron is structural and functional unit of kidney. तो कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? देयर इज अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन पर किडनी. तो 1 मिलियन हो गया ऑलमोस्ट 10 लाख. तो इसका मतलब दोनों किडनीज में आपके पास 2 मिलियन नेफ्रॉन्स हुए. सो नंबर कितना रहता है? नंबर इज 1 मिलियन पर किडनी. ओके, सो अब आती है स्ट्रक्चर की बारी. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के जब बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो मेन पार्ट्स हैं. वन इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज renal tubule. Now glomerulus is the tuft or bunch of capillaries. Tuft of capillaries. कहाँ से आई है tuft of capillaries? This is formed by efferent arteriole. Of course, efferent arteriole की branching होगी and fine branches आ गई. This is the tuft of capillaries. Nearly 50 parallel capillaries anastomosing with each other. इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे सपोज करो मैंने 50 धागे ले लिए, रस्सियाँ ले ली, उन 50 धागों को एक साथ कर दिया. सो दैट इज कॉल्ड पैरेलल हुए और उसके बाद उनको ऐसे लपेट दिया तो वो पैरेलल भी रहे और आपका जम्बल्ड अप स्ट्रक्चर भी बन गया, टफ्ट भी बन गया. सो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म बाय एफरेंट आर्टरियोल एंड देन rejoin to form efferent arteriole. ओके, सो ये है जी हमारा ग्लोमेरुलस. एज फार एज द renal tubule is concerned, the renal tubule has the parts. One is called as the Bowman's capsule. ये उसका फर्स्ट पार्ट है. renal tubule begins with Bowman's capsule, and second is the PCT, that is proximal convoluted tubule. Third is loop of Henle. इसको हम HL से भी डिनोट कर देते हैं और ये रहा जी आपका proximal convoluted
convoluted tubule. And then there is a structure that is called as DCT. This is distal convoluted tubule. And then we have collecting tubule and then collecting duct. बहुत सारी किताबें collecting tubule अलग से नहीं लिखती. Even NCERT is also not writing it. Collecting tubule and then we have another structure. तो मैंने oblique करके यहाँ पे आपको समझाया है, that is collecting duct. Now, so renal tubule starts with the Bowman capsule leading into a part that is called as a PCT, and then we have the loop of Henle, DCT and the collecting tubule. Okay जी, so let's draw this structure. अगर हम इसको structure को draw करते हैं तो let's draw this. Fine, this is our a fine cup-like structure. This is called Bowman's capsule. It leads into a convoluted part. This is a very, very diagrammatic representation. This is called as PCT. And then there is a part, इस तरह से hairpin bent part. जैसे we have a hairpin. So this is a bent part like this. There's another part, ये. So this part, which is your convoluted part, proximally something like this, ये. ओके, सो ये जो ये वाला पार्ट है बेसिकली यहाँ से आपके जुड़ते हैं और ये बनती है आपकी कलेक्टिंग डक्ट. सो लेट्स, ये हो गया जी हमारा बोमेन्स कैप्सूल. This part is your PCT. This part is thick limb. This part is thin limb. Again, this is thin limb. This is your thick limb. This part is your collecting duct. और ये पार्ट आपका, दिस पार्ट इज़ योर DCT. ये जो मैंने थिक और थिन लिम्ब है, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस फॉर्म्स योर डिसेंडिंग लिम्ब. दिस फॉर्म्स योर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप. और ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका बनाता है, दिस इज योर असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप. तो ये पार्ट आपका असेंडिंग बनाएगा और ये वाला जो पार्ट है, जो दिस पार्ट इज फॉर्मिंग योर डिसेंडिंग, दिस पार्ट इज फॉर्मिंग योर असेंडिंग. ओके, तो ये हमारा हेनलेज लूप हो गया. दिस इज बोमैन कैप्सूल, PCT, DCT, कलेक्टिंग डक्ट. एक्चुअली कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, दिस इज फॉर्म बाय जॉइनिंग ऑफ डक्ट्स फ्रॉम द DCT. तो DCT की डक्ट्स, या हम ये भी कह सकते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. अगर आप कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वाला वर्ड दे रहे हैं तो बोलिए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जॉइन, अदरवाइज यू कैन से DCT जॉइन. क्योंकि बाय अगर NCERT हम जाते हैं तो वो एज इट इज़ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का टर्म नहीं दे रही, समरी में इट इज़ गिवन. ओके, सो अगर हम यहाँ पे आते हैं, नाउ कम टू दिस. दिस इज योर एफरेंट आर्ट्रियोल. इट फॉर्म्स अ ब्रांचिंग नेटवर्क ओवर हियर, पैरेलल कैपिलरीज, टफ्ट है और ये आपका बन गया इफरेंट आर्ट्रियोल. सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. नाउ योर बोमेन कैप्सूल and glomerulus together called as renal or Malpighian corpuscle या body और corpuscle. तो ये अभी हमने यहाँ पे देखा था. So that is Bowman capsule
और जब हम बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद द बोमेन कैप्सूल, डबल वॉल स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड एज माल्पिजियन बॉडी। तो माल्पिजियन बॉडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ओके, अब हम बात कर रहे थे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म बाय एफरेंट आर्ट्रियोल, अ फाइन ब्रांचिंग और रेनल आर्टरी। तो लुक एट हियर, ये है जी आपका एफरेंट आर्ट्रियोल और ये है आपका इफरेंट आर्ट्रियोल। दोनों का डायमीटर डिफरेंट होता है। सो दिस इज विद लेस डायामीटर and this has more diameter. This is also going to contribute to the pressure. आप ये समझिए पानी की पाइप है, अगर पाइप ऊपर से चौड़ी है और नीचे आके नैरो हो गई, फिर बहुत सारी नैरो होगी और फिर जुड़ के एक और पाइप बन गई, ये चौड़ी है और ये थोड़ी कम चौड़ी है, तो ज़्यादा पानी आएगा, प्रेशर ज़्यादा होगा इस एरिया में और आगे प्रेशर उसका कम हो जाएगा। तो इस तरह से आई कैन से कि मोर फ्लो इज कमिंग। ल्यूमन वाइडर है, ज़्यादा फ्लो आ रहा है, सो यहाँ पे हम फ्लो जो है ज़्यादा आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम बात करें एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल, ज़्यादा डायमीटर होने की वजह से मोर ब्लड इज एंटरिंग इनटू द ग्लोमेरुलस कॉजिंग द मोर प्रेशर हेयर। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है आपका। ओके, और इस सेल्फ का अपना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो है ही है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इतनी बात कर रहे हैं कि दोनों का डायमीटर जो है वो डिफरेंट है और ये आपका ग्लोमेरुलस है। नाउ एज फार एज द नेफ्रॉन इज कंसर्न्ड, अगर हम नेफ्रॉन की बात करते हैं तो जो इसका एपिथीलियम है, खासकर इसकी जो लाइनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के ऊपर सारा एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन जो मेजर काम है नेफ्रॉन के, ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन जो फिल्ट्रेशन हो रही है, देन ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन जो उसने रीएब्जॉर्ब करना है, एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन यानी कि जो इसने सिक्रीट करना है। तो वो सारे पर्पस के लिए इसका जो हिस्टोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोमेन कैप्सूल है और जो पीसीटी है, जो आपका लूप ऑफ हेनले है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथीलियम आपको दिखता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एपिथीलियम की, तो पीसीटी के अंदर यू हैव ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथीलियम और इसके अंदर यू हैव गुड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसमें मोर है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है इसका मतलब एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, और ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम का मतलब हो गया कि इसके पास फाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माइक्रोविलाई हैं। अगर माइक्रोविलाई है, माइक्रोविलाई का पर्पस ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे, सो मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर, सो मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंडिकेट्स यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो एक्टिव हो रही है, यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। देन वी कम टू लूप ऑफ हेनले जिसमें डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। जो आपका लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब जो है इसमें हमारे पास देखिए, दिस इज थिक पार्ट एंड वी हैव अ थिन पार्ट, थिक पार्ट एंड थिन पार्ट। जो आपका थिक पार्ट है इसमें आपके पास क्यूबॉइडल एपिथीलियम भी है, ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम है। ऑफ कोर्स इट हैज सिंपल और बीच में इंटरस्पर्ट सिलिएटेड दोनों हैं। थिन पार्ट के अंदर स्क्वैमस एपिथीलियम है। अब स्क्वैमस एपिथीलियम बिल्कुल फ्लैट सेल्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। तो यू नीड टू थिंक, हमने ये एपिथेलियल टिश्यू में हम बात करते हैं कि डिफ्यूजन बाउंड्रीज आर फॉर्म बाय स्क्वैमस, फ्लैट चीज़ है तो फ्लैट में से इजीली पास होगी। अगर कोई चीज़ कॉल्यूमिनर है, लंबी है और क्यूबॉइडल है, तो नेचुरली उसमें डिफ्यूजन थोड़ा स्लो होगा, तो उसका रेट ज़्यादा, उसका काम ज़्यादा सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम है यहाँ पे। देन वी हैव असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में अगेन आपके पास थिक पार्ट,
and we have thin part. Same thing, thick part cuboidal epithelium और thin part में we have squamous epithelium. Okay, then we have DCT or descending convoluted tubule. Descending convoluted tubule. That is DCT. Now इसके अंदर भी आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही मिलता है, but you do have some brush bordered cells also present. Bordered cells also present. That means यहाँ भी आपके पास एब्जॉर्प्शन हो रही है. So DCT में भी आपके पास एब्जॉर्प्शन है. Then we come to collecting tubule and collecting duct. Collecting duct again has cuboidal epithelium और बिल्कुल लोअर पार्ट में जाकर वो आपका कॉल्यूमिनर एपिथेलियम भी हो जाता है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम सिंपल and brush bordered cuboidal epithelium ciliated cuboidal is also present. क्या काम करना है? क्योंकि नेफ्रॉन का काम है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन बनाना. तो आप ये देखिए, जब यहाँ से ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होके आ रहा है, यानी जो रिनल फिल्ट्रेट बन रहा है, उस फिल्ट्रेट की मूवमेंट भी तो करनी है. तो उसके लिए इसके बीच में अपार्ट फ्रॉम अदर सेल्स इंटरस्पर्स्ड बीच में फैले हुए सिलिएटेड एपिथेलियम भी है जो कि इसकी मूवमेंट करवाता है. सो दिस इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन. अब बारी आती है बोमेन्स कैप्सूल की. तो बोमेन कैप्सूल के अंदर हमारे पास क्या है? नाउ दिस बोमेन कैप्सूल जो है, दिस बोमेन कैप्सूल हैज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स. दिस इज योर बोमेन्स कैप्सूल. This is called as a visceral wall. And this is called as a parietal wall. This is outer parietal wall and this is your inner visceral wall. Now, जो outer parietal wall है, इसमें आपके पास squamous epithelium है. Something like this. Again flat cells. Squamous epithelium. और यहाँ पे हमारे पास it's a brush border epithelium, जो हमने क्यूबॉइडल की बात करी थी. जो यहाँ आपका इनर और विसरल वॉल है, इस विसरल वॉल के अंदर एक स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं. लुक एट दिस. These cells over here are called as podocytes. And these podocytes का नाम podocyte इसलिए है because cells with, podo means foot, cells with foot processes. So these are cells, ये इस तरह से इस वॉल पे हैं, ऐसे इस वॉल पे हैं. So these are podocytes, something cells with foot processes. ये ऊपर सेल है और ये उसकी इस तरह से processes हैं जो foot like processes हैं. ये ऐसे, यहाँ एक दूसरा सेल हो गया, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ये तीसरा सेल हो गया आपका, ये. तो मतलब कि जैसे ये पैर हैं और ये आपका इस तरह से ऊपर सेल, मतलब ये हाथ मेरा सेल दिखा रहा है आपको और नीचे इसके इस तरह से पैर हो गए. अब एक पैर ये हो गए, एक पैर ये हो गए. तो आप ये देखिए इस तरह से इंट्राइकेटेड नेटवर्क बनता है, यानी इसकी प्रोसेसेस और इसकी प्रोसेसेस आपस में इस तरह का नेटवर्क बना रही हैं. और ये जो स्पेस बीच में आता है इसको कहते हैं स्लिट पोर्स और फिल्ट्रेशन स्लिट्स. सो ये देखिए, ये आपके स्लिट पोर्स हैं और इनको कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स. दिस इज, ये आपका आया एफरेंट, ये आपका कैपिलरी नेटवर्क
और यहाँ हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये कैपिलरी नेटवर्क और ये आपका इफरेंट आर्टरियोल। ओके, ये जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली इज योर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, क्योंकि यहीं से फिल्टर होके चीज़ों ने बोमेन कैप्सूल में आना है। सो व्हाट इज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन? जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, जहां से फिल्ट्रेशन होनी है, दिस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ, एक साइड पे इसके ये बैठा है जी आपका कैपिलरी एंडोथीलियम। सो आई विल मेक इट लाइक दिस, डायग्रामेटिकली हम इसको कैसे दिखा रहे हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। ये आपका कैपिलरी एंडोथीलियम है। यहां पे बीच में आपके पास दिस इज फेनेस्ट्रा, फेनेस्ट्रा मतलब होल समझ लो, तो फेनेस्ट्री हो गए ये आपके प्लूरल में। सो इस तरह से यहां पे फेनेस्ट्री हैं। इसकी दूसरी साइड पे ये हमारे पास पड़े आपके पोडोसाइट्स। मैंने एक साइड पे प्रोसेस दिखाई है ऐसे। सो दिस इज योर पोडोसाइट्स, और ये पड़ी आपकी कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो दिस इज योर कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये पड़ा आपका कैपिलरी एंडोथीलियम। एंडोथीलियम, सो दिस इज योर कैपिलरी एंडोथीलियम। मीन्स इसको ऐसे दिखाएं तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, यहां आपका कैपिलरी एंडोथीलियम हो गया, और ये आपके इस तरह से यहां पे पोडोसाइट्स हो गए। तो आपके जो सोल्यूट्स हैं या जो भी फ्लूइड्स आपके फिल्टर होने हैं, ब्लड जब फिल्टर होगा तो ये है जी आपका रूट ऑफ फिल्ट्रेट, यानी कि फिल्ट्रेट यहां से निकलकर किस में आ रहा है, इट इज कमिंग इनटू योर बोमेन कैप्सूल। सो दिस इज योर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए? 3 कंपोनेंट्स उसके हो गए हमारे पास, या 3 पार्ट्स उसके कौन कौन से हो गए? 1 इज योर कैपिलरी एंडोथीलियम, सेकेंड इज योर basement membrane of capillary, एंड उसी की दूसरी साइड पे उसके साथ ही फ्यूज रहते हैं, ये कोई अलग नहीं है बिल्कुल, उससे स्पेस नहीं है, देयर इज नो स्पेस। एंड थर्ड इज योर पोडोसाइट्स। इसी वजह से यहां जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो एक कैपिलरी के कंपैरेटिवली काफ़ी गुना हाई है। एक नॉर्मल कैपिलरी से भी चीज़ें डिफ्यूज करती हैं, बट यहाँ वो डिफ्यूजन रेट हाई हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क कि व्हाट हैपन अगर आप फेनेस्ट्रा का साइज इंक्रीज कर दोगे? ऑफ कोर्स आपकी फिल्ट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। सो दिस इज हाउ इट इज डन। एंड व्हाट अबाउट द ब्लड सप्लाई? अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो एक क्विक रिव्यू में हम यहाँ बात करते हैं। ये जो इफरेंट आर्टरियोल है, यहाँ पर आकर एक और कैपिलरी नेटवर्क बनाता है जिसको हम पैरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। पेरी मीन्स पेरीफ्री और आउटसाइड, और ये यहाँ पे जुड़कर बेसिकली रिनल वेन्यूल यानी रिनल वेन की ब्रांच बनता है। इन सम नेफ्रॉन एक इस तरह का कैपिलरी नेटवर्क यहाँ पे अराइज होता है, सारों में नहीं होता। जिनके अंदर ये होता है उनको हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये जो कैपिलरी नेटवर्क लूप ऑफ हेनले के अराउंड बन रहा है, वी कॉल इट एज वासा रेक्टा, and this is your peritubular capillaries। ये जो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई थी, वो लाइन यहाँ पे बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारा जो नेफ्रॉन होता है उसका पीसीटी, उसका डीसीटी और उसका बोमेन पार्ट कॉर्टेक्स के अंदर रहता है, और कुछ पार्ट नेफ्रॉन का यानी लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट आपका किडनी के मेडुला में रहता है। So that's all with the structure of nephron. Thank you very much.